السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق علم و تجوید کورس کی پریکٹس کلاس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی جیسا کہ کل ہم نے مدات کے حوالے سے پڑھا تھا کہ کہاں کہاں پر کس کس مد کو ہم کتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ان کی مقدار کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے کھڑی حرکات کے حوالے سے پڑھا تھا، حروف مدہ کے حوالے سے پڑھا تھا۔ تو حروف مدہ تو الحمدللہ ہم کافی اس پہ پریکٹس کر چکے ہیں، لیکن یہاں کھڑی حرکات کے حوالے سے ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے، اس کے قواعد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ انہی کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا کہ کھڑی حرکات ہے کیا۔ کھڑی حرکات سے مراد کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ جیسے یہ کھڑی زبر ہے، ابا کی با پر کھڑی زبر ہے، پھر یہاں دیکھیں بعدی ہی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ اسی طرح الٹا پیش بھی ہمیں یہاں سے مل سکتا ہے، یا رہو کی ہا پر یہ جو پیش ہے یہ الٹا پیش ہے۔ یہ ہم نے پڑھا کہ ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، یعنی 2 حرکات کے برابر ہے۔ یعنی جب ہم کھڑی حرکات کو پڑھتے ہیں تو ان کو ہم حروف مدہ کے جتنا ہی لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے حروف مدہ کو 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں تو کھڑی حرکات کو بھی 2 حرکات کے برابر ہی کھینچتے ہیں۔ اور جب ہم کھڑی زبر ہے نا، کھڑی زبر، اس میں کھڑی حرکات کے حوالے سے وقف کے کچھ قواعد ہیں۔ سب سے پہلے کھڑی زبر کی اگر بات کریں تو جب ہمیں کھڑی زبر پر وقف کرنا ہوتا ہے تو ہم کھڑی زبر کو وقفاً وصلاً ایک ہی طریقے پہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ کلمہ ہے ابا، اگر یہاں ہمیں وقف کرنا پڑے تو بھی ہم اس کو ابا ہی پڑھیں گے، یعنی وصلاً بھی 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں اور وقفاً بھی، یعنی کھڑی زبر پر جب وقف کرتے ہیں تو کھڑی زبر کو وقفاً وصلاً ایک ہی طریقے پر پڑھتے ہیں، 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں اسے۔ کسی بھی حرف پہ آ جائے تو یہی رول ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑی زیر ہے، جیسے یہاں پر ہے فی ہی، ٹھیک ہے۔ جب کھڑی زیر پر وقف کرتے ہیں تو کھڑی زیر کسی بھی حرف پر آئے اگر تو ہم وہ حرف ساکن کر دیتے ہیں، کھڑی زیر ختم ہو جاتی ہے، حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کھڑی زیر یا پر آ جائے، ٹھیک ہے، کھڑی زیر اگر یا پر آ جائے تو پھر ہم وقف کی صورت میں وہ کھڑی زیر بھی پڑھیں گے اور اسے 2 حرکات کے برابر ہی کھینچیں گے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ مثال ہے یحیی، ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم وصلاً پڑھ رہے ہیں تو بھی یحیی، وقف کرنا ہے تو بھی یحیی، ٹھیک ہے۔ یعنی کھڑی زیر پر جب ہم وقف کریں گے، کسی حرف پر آئی کھڑی زیر، حرف ساکن ہو جاتا ہے، کھڑی زیر ختم ہو جاتی ہے سوائے یا کے۔ اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جس کے آخر پہ یا آ رہی ہے اور وہاں کھڑی زیر ہے اور ہم نے وقف کرنا ہے تو وہاں پر ہم کھڑی زیر کو یا پر کھڑی زیر کو وقفاً وصلاً ایک ہی طریقے پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا کے علاوہ کسی اور حرف پر کھڑی زیر آئے، وقف کی صورت میں ہم اس حرف کو ساکن کرتے ہیں، جیسے بعبدہ وصلاً، اگر یہاں پہ وقف کرنا ہے پھر ہاں ساکن ہو جائے گی، پھر ہم اسے پڑھیں گے بعبدہ،
बिअब्दिह, ठीक है। इसी तरह अगर उल्टा पेश की बात की जाए, उल्टा पेश किसी भी हर्फ पर आ जाए जब हम वक्फ करते हैं, ठीक है, वसलन तो इसे 2 हरकत के बराबर खींचेंगे उल्टा पेश को भी, लेकिन जब हम वक्फ करते हैं तो क्या होता है, उल्टा पेश भी खत्म हो जाता है, हर्फ साकिन हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा हर्फ हो जहां हम वक्फ कर रहे हैं और आखिर में वाऊ हो, ठीक है, वाऊ पर उल्टा पेश अगर आ जाए तो वक्फ की सूरत में हम उस उल्टा पेश को भी पढ़ेंगे, 2 हरकत के बराबर खींचेंगे, ठीक है। उल्टा पेश पर वक्फ का क्या तरीका है, वाऊ के अलावा किसी भी हर्फ पे उल्टा पेश आए तो वो खत्म हो जाएगा, हर्फ साकिन हो जाएगा। लेकिन अगर हम वाऊ पर उल्टा पेश है और वहां वक्फ कर रहे हैं तो फिर हम वाऊ वाले उल्टा पेश को भी हम 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, वक्फ की सूरत में भी, वसलन तो खींचना ही खींचना है, ठीक है। तो ये हमारे खड़ी हरकत के कवायद हैं। खड़ी जबर को वक्फन वसलन जहां भी आ जाए एक ही तरीके से पढ़ेंगे, 2 हरकत के बराबर खींच कर। खड़ी जेर, खड़ी जेर अगर या पर आ रही है फिर हमने वहां वक्फ करना है, तो हम या पर आने वाली खड़ी जेर को ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे वसलन खड़ी जेर को पढ़ना है। लेकिन या के अलावा किसी हर्फ पर खड़ी जेर आए तो वक्फ की सूरत में वो हर्फ साकिन हो जाएगा। फिर उल्टा पेश, उल्टा पेश अगर वाऊ के ऊपर हो और वहां वक्फ करना हो तो हम वहां पर वक्फ भी वसलन ही की तरह करेंगे, ठीक है, यानी वाऊ को हम 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। लेकिन अगर वक्फ की सूरत में उल्टा पेश वाऊ के अलावा किसी और हर्फ पे आ रही है तो तब हम उल्टा पेश को खत्म कर देंगे, हर्फ साकिन कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास खड़ी हरकत के कवायद। तो अब मुझे उम्मीद है कि जब आप ये सबक पढ़ें तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है जी। आज का सबक आप खुद से ही पढ़ेंगे जी। यास्मीन साहिबा आप कीजिए माइक ओपन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट मैम करें जी। मैंने ना कल वाला सबक भी मैं हाजिर नहीं थी, शायद हम्म आपको पता हो। और हम्म, वो मैंने अभी सुना भी नहीं, और मैं अभी अभी घर आई हूँ थोड़ा सा, और अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मैं ना ठीक है मेंटली ठीक है वो ठीक है, कोई बात नहीं, हाजिर नहीं हूँ। जज़ाकिल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं बाद में पढ़ती हूँ। ओके ठीक हो गया, बारकल्लाहु ठीक है। फीक। जी जी सलमा थैंक यू। आप कीजिए माइक ओपन। जी أبى أتى سجى أو हम्म أوحي हम्म أ- आप अपने पास स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, मैं कर देती हूँ। अब देखिए, ये वो أوحى सही, ठीक है। فهدى يري सही, ठीक है। تجزى عسى वैसे ना थोड़ी सी कोशिश ये करें, इस वक्त पढ़ने के दौरान ना हाथ की मुट्ठी बनाएं और एक एक करके 2 फिंगर्स ओपन करें और फिर चेक करें मिकदार को, खड़ी हरकत की मिकदार। عسى يخشى हम्म عصى पहले से बेहतर हुई है ना मिकदार इसकी। जी ठीक है।
يرضى طه अच्छा, अब आप ऐसा करें, हम 1 मिनट रुकिए, आप मुझे यहाँ से पढ़ के बताइए, ये लाइन पढ़ें, ये वाली। يحيى यहाँ पर जबर है। يحيى जी يحيى अच्छा, आप ये बताइए, हम यहाँ पर वक्फन पढ़ रहे हैं या वसलन पढ़ रहे हैं? हम वसन पर सही। अगर हमने यहाँ वक्फ करना हो फिर कैसे पढ़ेंगे हम? अगर दो हरकत के बराबर खींचेंगे। खड़ी जबर पर वक्फ करने का क्या तरीका है? खड़ी जबर पर वक्फ वसलन की सूरत में ही होता है। ठीक है, 2 हरकत के बराबर ही खींचेंगे। ठीक है, आगे। आयातिन दोबारा से। आयातिन और वक्फन कैसे पढ़ेंगे? आया आयात दोबारा से देखिएगा, इनकी मिकदार को पूरा कीजिए, खड़ी हरकत की। आ, आयात सही, आगे। आलिफ आलिफ सही, फीही वक्फन। फी फीही फी खड़ी जेर पर वक्फ का क्या कायदा है? जब उससे पहले या तो अ, उधर मतलब खत्म हो जाएगा। मतलब दो हरकत के बराबर नहीं खींचेंगे। अगर उससे पहले या ना हो फिर नहीं खत्म होगा? नहीं नहीं, अगर इससे पहले या अगर उससे पहले या ना हो तो फिर खड़ी जेर वक्फ की सूरत में खत्म नहीं, नहीं नहीं नहीं, अगर उससे पहले या हो। फिर खत्म होगी। जी, आप दोबारा बताएं, आप क्या कह रहे हैं? खड़ी जेर पर वक्फ करने का क्या कायदा है? वक्फ करने का जब इससे पहले या हो हम्म तो वक्फ हो जाएगा। तो वक्फ हो जाएगा, अगर ना हो तो वक्फ नहीं होगा। अगर ना हो तो दो हरकत के बराबर खींचेंगे। सही। सही यहाँ है। पर मैंने आपको ये बताया था, जब खड़ी जेर पर वक्फ करते हैं, खड़ी जेर खत्म हो जाती है, हर्फ साकिन हो जाता है। लेकिन जब हम या पर वक्फ करते हैं ना, जब या पर वक्फ करते हैं वहां खड़ी जेर होती है, तो वो खड़ी जेर हम पढ़ते हैं, वो नहीं खत्म होती वक्फ की सूरत में भी। वक्फ की सूरत में या पर आने वाली खड़ी जेर को भी हम 2 हरकत के बराबर ही खींचते हैं। ठीक है, ओके। अब बताइए, खड़ी जेर पर वक्फ करने का क्या कायदा है? चलो, इसे याद ही नहीं हो रहा। अच्छा, चलो ठीक है, मैं अभी आपको याद करवाती जब हूँ, ये या पढ़िए जरा। जब एक मिनट, जब या होती तो उसके बाद कब वक्फ करना, ये मुझे समझ हम्म नहीं आ रही। मैं जब आपको अभी या बताती हूँ, है ये या देखिए, नहीं है। ये देखिए ना, ये लफ्ज है ना, यस्तही, युहयी, जी है ना? ठीक है। अब जी अगर यहाँ पर हमें वक्फ करना पड़ा यस्तही पर, ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ, जब खड़ी जेर या के नीचे होती है वहां वक्फ करना हम्म, पड़े, तो वहां पर फिर अच्छा हम अच्छा, इस खड़ी जेर को खत्म नहीं करते, बल्कि वक्फ की सूरत में भी हम इसे 2 हरकत के बराबर खींचते ही हैं। सही है सही है। हाँ, अब अगर ये खड़ी समझ आ रही। जेर, अगर खड़ी जेर या के अलावा किसी और हर्फ पे आती है ना, हम्म, तो वहां पर खत्म हो जाती है, वो हम्म, हर्फ साकिन हो जाता है। ठीक है। जी। हम्म अब हम ये पढ़ रहे थे, पढ़े क्या पढ़ना है इसको? फी ही और वक्फन? फी फी ही फी ही
हाँ, और कल के सबक में हमने ये भी पढ़ा था, जब हम वक्फ करते हैं, वक्फ वाले हर्फ से पहले, जो हर्फ वक्फ की सूरत में साकिन होता है ना, उससे पहले अगर जज़म वाली या आए तो उसे हम 3 गुना खींचते हैं। पढ़ा था कल के सबक में। जी फिर वक्त की सूरत में हम इस हरफ मद्दा या को 6 हरकत के बराबर खींचेंगे। जी। अब 6 हरकत के बराबर पढ़ लो। यस। फी नो 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 नो, अगर हम यहाँ पर आखिर में फी ही है ना, फी पढ़ना, इसको फी यानी वक्फ करना है अगर, फिर यहाँ हर्फ साकिन हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर खड़ी जेर या पर नहीं आ रही। जब खड़ी जेर या पर नहीं होगी और वहां वक्फ करना होए तो हम खड़ी जेर को खत्म करते हैं, हर्फ साकिन करते हैं। तो जब कोई हर्फ वक्फ की सूरत में साकिन होता है और उससे पहले जज्म वाली या आ जाती है, तो वहां पर हम 6 हरकत के बराबर खींचते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे फी, वक्फ होगा ना, फिर इसको 6 के बराबर खींचेंगे। पढ़ें। फी सही। अब इसको भी पढ़ें, वक्फ की सूरत में इसको कैसे पढ़ना है। बाद और अगर वक्फ ना करना हो तो बादिही सही, ये भी पढ़िए। रुसुलिही और वक्फन रुसुलिह सही। अब ये वाला पढ़ें, कलीमा कैसे पढ़ना है। इसको आपने वक्फन पढ़ना है, ठीक है, वक्फ करना है यहाँ पे, तो पढ़िए कैसे पढ़ा जाएगा। युह युह्यी क्या तरीका है यहाँ वक्फ करने का। हम्म, हम्म जब या के नीचे हाँ हाँ ठीक है, बोले। जब या के नीचे खड़ी जबर खड़ी हो तो नीचे, नीचे हो तो जेर होती है ना, खड़ी जेर। खड़ी जबर होती तो मतलब नहीं पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। फिर आपने क्यों खींचा, जब आपने पढ़ा तब तो आपने खींच के पढ़ा इसे। नहीं बस या पढ़ युह्यी युह्या आपको पता है, जब कोई हर्फ साकिन होता है ना, उसकी अपनी तो आवाज होती नहीं है ना। صح जब कोई हर्फ जज्म के साथ साकिन होता है ना, उसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती तब, तो फिर हम इसको वक्फन यूं ही कैसे पढ़ सकते हैं। يح يحيى يحيى अब देखिए, अब आपको सही समझ आएगी। अब देखा आपने, यहाँ पर हा भी साकिन हो गया, और वक्फ की सूरत में या भी अगर साकिन हो रहा है, तो बताएं यहाँ पे या पढ़ा जा रहा है साकिन होने की सूरत में। हम्म क्योंकि जज्म वाले हर्फ की कोई आवाज नहीं होती। अब ये हा तो या से मिलके युह बन गया, इस या को कैसे पढ़ना है हमने वक्फ की सूरत में। अब ये जज्म आने की वजह से पढ़ी ही नहीं जा रही, जबकि ये कलीमे का हिस्सा है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर इसका यही तरीका है, जब खड़ी जेर या के नीचे आ जाए तो वक्फन भी पढ़ी जाती है। يحيى खड़ी जेर है। يحيي हाँ, या पर पेश है, पहली या पर पेश है, आखिरी या पर खड़ी जेर है। يحيي यस। अब आपने बताना है यहां पर वक्फ करने का क्या तरीका है। जब या के नीचे जेर
खड़े ज़ेर हो तो या को वक्फ पढ़ेंगे। तो या पर वक्फ की सूरत में खड़ी जेर को पढ़ेंगे। अब आपने पढ़ी है ना, तभी तो जी युही पढ़ा हमने। अगर हम यहाँ खड़ी जेर को छोड़ते हैं या साकिन हो जाती है, और जब ये साकिन हो जाती है ना तो ये पढ़ने में आ ही नहीं रही, तो इससे लफ्ज टूट रहा है, जी उसका कोई माना ही नहीं बन रहा। ठीक है, मतलब तो अब या नहीं पढ़ेंगे जब वक्फ में होते पढ़ेंगे हैं। पढ़ेंगे। खड़ी जेर कैसे पढ़ी जाएगी? अकेली खड़ी जेर तो नहीं ना पढ़नी हमने। खड़ी जेर जी हम तो हरकत के साउंड पढ़ते हैं, ठीक है, तो बगैर किसी हर्फ के किसी हरकत का साउंड तो नहीं हो सकता ना। जी अभी भी आपको नहीं समझ आया? अब यहाँ पर देखें बेटा, ये ऊपर वाला लफ्ज देखें, कीली ही है ना, कीली ही। जब यहाँ हमने वक्फ किया, हमने इजीली इसको पढ़ लिया कीली। यहाँ पर वक्फ की सूरत में हमने खड़ी जेर को जब खत्म किया, फिर भी हम हा को पढ़ रहे हैं जज्म के जी जी साथ, लिह लिह आवाज आ रही है ना। अब चूंकि जी यहाँ पर मसला ये है, जब हम यहाँ वक्फ करते हैं, अगर हम यहाँ भी खड़ी जेर को खत्म करते हैं, या को साकिन कर रहे हैं ना, फिर ये पढ़ने में नहीं आ रही। युह यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, अब या को कैसे पढ़ें? तो ये पढ़ने में नहीं आ रही, जबकि जज्म वाला हर्फ तब पढ़ा जाता है जब वो अपने पिछले लफ्ज से मिलता है। पीछे वाले लफ्ज से तो वो तभी मिलता है ना जब वो मुतहर्रक हो। तो अब चूंकि अगर या को भी साकिन कर दें, उससे पहला भी साकिन है, तो वो तो फिर पढ़ने में नहीं आएगा। और जी अगर हम या को पढ़े नहीं तो या कट जाएगी, तो ये हर्फ युह रह जाएगा, युह, जो कि कोई जी भी कलिमा नहीं बन रहा। तो जब ये कोई कलिमा ही नहीं बन रहा तो इसका माना भी खत्म हो रहा है, जबकि ये कुरान का लफ्ज है। जी हम इस लफ्ज को तोड़ नहीं सकते ना। इसलिए फिर कायदा ये हुआ कि जब खड़ी जेर या पर होती है, वहां पर हम वक्फन भी खड़ी जेर पढ़ते हैं। खड़ी जेर जी पढ़ने से मुराद है या पढ़ी जाएगी, ठीक है। जी जी हम्म, तो पढ़िए, क्या कैसे पढ़ा हमने इसको? युही हम्म, ये भी पढ़े। यस्तही सही। अब आप ये बताइए, यस्तही को आपने वक्फन पढ़ा या वसलन पढ़ा? दोनों वक्फन और वसलन। वक्फन और वसलन दोनों तरीकों में एक जैसा ही पढ़ा जाएगा। गुड, अब आपको समझ आ गया है। जी जी समझ आ अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक। गया। अब मुझे ये भी पढ़ के बताइए, ये वाला कैसे पढ़ना है? अम, यराहू सॉरी यराहू ये आपने रा की जबर को ज्यादा ही नहीं खींच दी, तो जबर है ना। हम्म, यराहू यारहू, ये उल्टा पेश है, उल्टा पेश की मिकदार पूरी करें। यराहू हु की मिकदार पूरी करने में रा की मिकदार भी थोड़ी खींची गई है, दोबारा से पढ़ें। यराहू हम्म, और इसे वक्फन कैसे पढ़ना है? इसको वक्फन में हम्म यरा शाबाश या रह। अब बताइए, उल्टा पेश पर जब वक्फ करना होता है तो क्या तरीका है इसका? उल्टा पेश जब उससे पहले वाव हर आ जाए तो फिर नहीं बेटा, मैंने ये नहीं बोला पहले पहले थी, मैंने कोई बात ही नहीं की पहले की। तो सिंपल बात, जैसे अभी हमने या और हा की बात की है ना, बिल्कुल ये भी ऐसे ही है। जब उल्टा पेश वाऊ पर आएगा तो वो वाऊ वक्फन भी पढ़ी जाएगी उल्टा पेश के साथ ही, ठीक है। यानी वहां भी हम उसको दो हरकत के बराबर खींच के ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर उल्टा पेश वाऊ के अलावा किसी भी हर्फ पर आए तो वहां उल्टा पेश खत्म हो जाता है, हर्फ साकिन हो जाता है, बस। जैसे ये है याराहू, जब हमने वक्फ किया तो याराह पढ़ा,
کیونکہ جی وقفاً الٹا پیش ختم ہو گیا، حرف ساکن ہو گیا، ہو گیا. لیکن اگر آخری حرف واو ہو، یہاں کوئی مثال؟ یہاں سے دیکھتے ہیں. ہاں یہاں پر دیکھیں، یہ ہے لِتَسْتَوُوا، ہے نا، لِتَسْتَوُوا. لیکن اگر ہم اس کو وقف کریں گے تو وقفاً بھی ہم واؤ کی الٹا پیش کے ساتھ ہی واؤ کو پڑھیں گے، لِتَسْتَوُوا. ٹھیک ہے، 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں جی گے ہم اس کو. یہی بتایا جی میں جی نے آپ کو، جب الٹا پیش واؤ پر آ جاتا ہے نا، پھر ہم اس کلمے کو وقفاً وصلاً ایک ہی طرح پڑھیں گے. لیکن اگر الٹا پیش کسی اور پہ آتا ہے تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے. جی. اب یہ پڑھیے، یہ کیا ہے؟ فَلَهُ. اور وقفاً؟ فَلَهُ. صحیح. اب آپ بتا سکتے ہیں الٹا پیش پر وقف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ الٹا پیش جب واو کے حرف کے علاوہ اگر ہو تو ادھر ہی ختم ہو جاتا، اور اگر واو کے اوپر الٹا یہ پیش ہو تو 2 حرکت کے برابر. ٹھیک ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ، بارک اللہ فیک. بس مجھے آخری لفظ پڑھ کے بتا دیں، یہ والا مجھے پڑھ کے بتا دیں ایک بار، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یستوون. وقفاً پڑھا نا آپ نے یہ؟ نہیں، ہم یہ اوپن نہیں، مطلب آپ نے مثلاً دوبارہ سے پڑھیں بیٹا اس کو، جیسے وصلن ہوتا ہے نا ویسے پڑھیں. کیسے پڑھیں گے پھر اس کو وصلن؟ یستوون. وصلن کوئی بھی حرکت ختم نہیں ہوتی. ٹیچر حرکت کون سے ختم کیا میں؟ آپ یہاں پہ نون کی حرکت نہیں پڑھ رہے. یستوون. ہاں یہ ہوا وصلن. ٹھیک ہے، اب جی اس کو وقفاً پڑھیں. یستوون. صحیح ہو گیا. اب جب ہم نے اس کو وقفاً پڑھا نا تو ہم نے دیکھا حرف ہو گیا ساکن. ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے واؤ پر الٹا پیش آ رہا ہے نا، تو ہم نے ایک سبق میں پڑھا تھا کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے. جی تو یہاں پر اس واؤ الٹا پیش کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ یہ واؤ مدہ کے برابر ہے. تو اب وقفاً ہم یہاں 6 حرکات کے برابر کھینچیں گے. جی. پھر کیسے پڑھیں گے اس کو؟ پڑھیں. واو کو 6 حرکت کے برابر ہاں کھینچے گے. بالکل. یستوون. اب صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ مزید فضل. جی تو اب بتائیے، آپ سب کو ہی اس سبق کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی. اب ایسے ہی آپ سب نے یہ سبق ریکارڈ کر کے مجھے بھیجنا ہے. ایک آپ اس کی پہلی 2 لائنیں ریکارڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ والی لائن یحییٰ آیاتین والی، ٹھیک ہے، پھر اس کے نیچے والی عملی تقاتی ہی، اور پھر آپ یہ آخری 2 لائنیں. ٹھیک، آپ نے یہ وائس ریکارڈ کر کے سب نے ہی مجھے بھیجنا ہے. اور یہ تمام کلمات جو میں نے آپ کو مینشن کیے ہیں نا، وقفاً بھی پڑھنے ہیں اور وصلاً بھی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا اور مجھے بھی سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پر ابھی ہمیں مزید درستگی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ سارا ٹائم ایک بچے پہ لگا کے تو شاید ہماری کوئی وہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مقصد تو یہی ہے نا کہ سب کو سمجھ آ جائے. تو مجھے امید ہے آپ سب کو بہت اچھا سمجھ آ گیا ہوگا.
باقی اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو آج کے سبق کے حوالے سے تو ہینڈ ریز کیجئے۔ ٹھیک ہے، پھر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اجازت دیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔